जय भारत डियर ऑल बच्चा पार्टी। आई होप कि आपका प्रिपरेशन जो है वो सही से चल रहा होगा। इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द साइटोस्केलेटन दैट इंक्लूड्स cilia and flagella. We have also talked about the structure of cilia and flagella. It is similar. It has 2 central microtubule and 9 peripheral doublet. While in case of basal body and centriole, it has none any kind of a central tubule. उसमें कोई central tubule जो है वो नहीं होता है, but it has peripheral 9 triplet. वहाँ तक हम पढ़े थे, right? Now that was about the cytoskeleton. Now we are talking about the cell inclusions. सेल इंक्लूजन जो है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल इंक्लूजन का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज, एक्सक्रीशन, राइट। और इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट इट फॉर्म अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है दैट इज ऑल्सो इंक्लूड एज अ सेल इंक्लूजन्स। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर जो हम सेल इंक्लूजन्स में पढ़ेंगे, बट सेल इंक्लूजन्स इज बेसिकली अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मा। कैसा पार्ट है वो? नॉन लिविंग पार्ट। एंड दिस सेल इंक्लूजन्स हैविंग अ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज सेल इंक्लूजन्स. If we talk about the cell inclusions is nothing but we can say that it is a non-living structure of cytoplasm, right? So it is a non-living structure of cytoplasm and also called as ergastic body or deutoplasmic body. So basically cell inclusions is a non-living part of the cell which is present in the cytoplasm, right? But it is also known as deutoplasmic body or ergastic body, right? Okay, now this includes, means cell inclusions include, the first and the most one is vacuole. As we know that the vacuole is single and larger and they are centric in case of plant cell, right? While in case of animal cell, vacuoles are very much tiny structure and they are found in a scattered form inside the cytoplasm, right? So in case of vacuole, it is always, whenever we use to vacuole term, that means it is related with what? Plant cell. हम किसकी बात कर रहे हैं? Always we are talking about the plant cell. ऐसा क्यों? Because in plant cell the vacuole is prominent and it is found at the center of the cell, and we can say that it is a largest organelle of a plant cell. Okay, they are found in all eukaryotic cell except mature mammalian RBC and meristematic cell. As we know that the meristematic cell is related with the growth process, right? So meristematic cell do not have two structure. One is vacuole, right? And the other structure is what? Other structure is secondary cell wall, because this cell is continuously divide mitotically, right? And it form many cells, right? So basically it is responsible for the growth. तो इसमें meristematic cell में vacuole नहीं होंगे, as well as in mature mammalian RBC also there is no vacuole in it. Okay, in animal cell their size is smaller and number is more, and they are found in a scattered form inside the cytoplasm. So animal cell में बहुत ही tiny vacuoles होंगे, they are much more in number and they are scattered all around in the cytoplasm region. Okay, in plant cell there is a single large central sap vacuole. प्लांट सेल जो होगा उसमें हमने जब ये स्ट्रक्चर देखा तब भी हमने पढ़ा था, इन प्लांट सेल देयर इज अ लार्ज वैक्यूल, right? This kind of vacuole it was. Okay, and the membrane of this vacuole is known as tonoplast. What it is called? Tonoplast. And whatever the substance present inside this vacuole, right, it is known as vacuole sap. What it is called? It is known as vacuole sap. That vacuole sap contain what? Vacuole sap contain water, it contain mineral ion, it contain amino acid, it contain protein, carbohydrate, organic acid and a pigment like anthocyanin. ये सब किस में होगा? vacuole sap में होगा, right? Okay, so the membrane of vacuole is called tonoplast. ठीक है, membrane को क्या बोलेंगे हम? The membrane of vacuole is known as tonoplast and it is single layer and semi-permeable, right? So other organelles having a double membrane structure, while in case of vacuole it is a single membrane structure. And the other thing is that this we can say that that membrane which is known as tonoplast act as a semi-permeable membrane. What it is called? It is a semi-permeable membrane. Okay, if we talk about the composition of vacuole sap, the liquid present in a vacuole is called sap, and that sap formed of water, mineral ion, sugar, amino acid, protein
एंथोसाइन विच इज अ पिगमेंट एज वेल एज ऑर्गेनिक एसिड। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस में होगी, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल, दैट मीन्स दे आर द कंपोजिशन ऑफ वैक्यूल सैप। ओके, now sap vacuole maintain turgor pressure and helps in opening and closing of stomata. Here we are basically talking about the guard cell, right? So guard cell जो है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। guard cell जो है for example in dicot plant this kind of guard cell are present in the epidermal layer of the mainly leaves, ठीक है। उसका inner wall जो है that is a thicker एंड आउटर वॉल जो है दैट इज अ थिनर, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, दे आर द गार्ड सेल, राइट। और ये गार्ड सेल जो है, ठीक है, उसमें एक थियरी भी हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज पोटेशियम आयन थियरी। दीज आर द अदर एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल ऑल्सो एपिडर्मल सेल, बट दीज आर द अदर एपिडर्मल सेल। और अगर मैं यहाँ पे क्यूटिकल लेयर की बात करूँ तो ये इतने गार्ड सेल वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या नहीं होगा, क्यूटिकल लेयर नहीं होगा। अदरवाइज ऑल अराउंड देयर इज अ क्यूटिकल लेयर, राइट, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सपोज लीव्स की सरफेस है तो उसमें जहां पे स्टोमेटा होगा, जहां पे गार्ड सेल होंगे, उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी होगा, राइट, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो भी कहाँ पे हो रहा है, इसी सरफेस पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गार्ड सेल जो है वो गार्ड सेल क्या करेंगे, गार्ड सेल जो है वो पोटेशियम आयन जो है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उससे ये गार्ड सेल जो है दैट बिकम हाइपरटोनिक। वो खुद कैसे बन जाएंगे, दे बिकम हाइपरटोनिक। तो अगर वो हाइपरटोनिक हो गए दैट मीन्स दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल और अदर एपिडर्मल सेल। और अदर एपिडर्मल सेल में जैसे ही पानी जो है वो गार्ड सेल में रहेगा, गार्ड सेल बिकम टर्जर, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, एंड दैट टर्जिड प्रेशर क्रिएट्स अ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे ही वो वाटर लॉस हो जाएगा अगेन इट बिकम शंकन, तो वो जो स्टोमेटा का जो अपर्चर जो है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो टर्जर प्रोसेस से होता है। सेम वे अगर हम बात करें कि अगर मैं रूट की बात करूं, ठीक है, आप रूट का ऐसा स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हो, राइट, दिस इज द रूट एपिकल पार्ट या फिर एपिकल पार्ट ऑफ द रूट। और इस एपिकल पार्ट में टूवर्ड्स द टिप देयर इज अ सेल विच इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल। उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये जो जोन है दैट इज अ ग्रोथ जोन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ जोन। ये आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये ग्रोथ जोन के बाद जो जोन आएगा दैट इज अ जोन ऑफ इलोंगेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ पे सेल जो है वो इलोंगेटेड हो जाएंगे। ये ग्रोथ जोन में नहीं होंगे, क्यों, बिकॉज ग्रोथ जोन हैविंग अ मेरिस्टेमेटिक सेल। और अभी हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उसमें वैक्यूल नहीं होते, राइट। मेरिस्टेमेटिक सेल जैसे ही ग्रेजुअली क्या होते जाएंगे, डिफरेंशिएट होते जाएंगे, उससे पहले जस्ट वो क्या फॉर्म करेंगे, वैक्यूल फॉर्म होंगे। ग्रेजुअली दैट वैक्यूल जो है दैट बिकम वी कैन से दैट द साइज ऑफ वैक्यूल गेट इंक्रीज, राइट, एनलार्जमेंट होगा वैक्यूल का। जैसे जैसे वो एनलार्जमेंट होगा वो वैक्यूल जो प्रेशर जनरेट करेगा, किसके ऊपर, प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल में कौन सी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो वो जो सेल है वो क्या होते जाएंगे, इलोंगेट होते जाएंगे। और वो जो जोन है उसको हम बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन। और जोन ऑफ इलोंगेशन हुआ उसका मतलब ये है कि वहां पे क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। तो अगर हम बात करें लीव बर्ड की या फिर मैं बात करूं फ्लोरल बर्ड की, वो सारे बर्ड या फिर आउटग्रोथ जो प्लांट में फॉर्म हो रहा है दैट इज ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। एंड दैट टर्गर प्रेशर इज फॉर्म बाय व्हाट, दैट टर्गर प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द वैक्यूल सैप। क्योंकि वैक्यूल सैप जो दैट इज अ हाइपरटोनिक एंड नॉर्मली इट इज इट्स टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। तो उससे क्या करेगा, वो टर्गर प्रेशर जो वो जनरेट करेगा, और वो टर्गर प्रेशर से ग्रोथ जो है वो डेवलप होता है, राइट, ग्रोथ वाले स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। सो sap vacuole maintain turgor and help in opening and closing of the stomata, opening of floral bird, all other turgor movement that is also depending upon the vacuole sap. ये भी आपको याद रखना है, राइट। चलिए, depending upon the function vacuole can be of a following type. vacuole जो है वो मेन उसमें क्या क्या है वो तो हमने पढ़ा, it has water and mineral ions, amino acid, sugar, anthocyanin kind of pigment, organic acid, ये सब वैक्यूल सैप में है, राइट। लेकिन उसका फंक्शन जो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वैक्यूल आर हैविंग मैनी टाइप्स, ठीक है। वो टाइप जो हम पढ़ते हैं, पहला जो है दैट इज फूड वैक्यूल।
तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग द एंडोसाइटोसिस इफ द फूड मटेरियल इज इन सॉलिड फॉर्म दैट फॉर्म फैगोसोम एंड इफ इट इज अ लिक्विड फॉर्म दैट इन फॉर्म व्हाट पिनोसोम। तो ये फैगोसोम या फिर पिनोसोम जो है वो है क्या, बेसिकली दे आर फूड वैक्यूल, क्या बोलते हैं हम उसको, फूड वैक्यूल, ठीक है। सो फूड वैक्यूल दे कंटेन इंजेस्टेड फूड and are also known as phagosome if it is a solid form of food or pinosome if it is a liquid form of food, ठीक है। तो ये हो गया फूड वैक्यूल। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये पार्ट हम निकाल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन अ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम। सपोज आप ऐसे समझ लिए ये जो पार्ट है इट इज नथिंग बट द पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जो वैक्यूल होंगे वो वैक्यूल जो है वो ऐसे आपको स्टार शेप जो है वो दिखेगा, राइट। और वो स्टार शेप में ऐसे 5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होंगे। ऐसे 2 वैक्यूल जो है वो होंगे, ठीक है। कैसे शेप हैं, स्टार शेप हैं, राइट। और उसमें एक सेंट्रल ल्यूमन है और उसके अलावा 5 के 5 जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या है, ल्यूमन है, राइट। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। किसमें होगा ये, वो होगा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और ऐसा एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हमने यहाँ पर बनाया पैरामीशियम, ओके। अब ये अगर हम पैरामीशियम की बात करें वो फ्रेश वाटर है, उसका मतलब ये है कि जो आउटर सराउंडिंग मीडियम होगा दैट इज हाइपोटोनिक, राइट। और उसके अगर खुद के साइटोप्लाज्म की बात करें दैट बिकम अ हाइपर, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है। तो आउटर मीडियम कैसा है, हाइपो, इनर मीडियम कैसा है, हाइपर। और इसलिए अगर हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस अगर हम बात करें तो वाटर मोलिक्यूल मूव्स फ्रॉम हाइपो टूवर्ड्स हाइपर, डाइल्यूट टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ या ना, या फिर वाटर मॉलिक्यूल का जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है टूवर्ड्स अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मींस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कॉन्स्टेंटली बाहर से जो है वो H2O जो है वो कहाँ पे आएगा, टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो ऐसे कंडीशन में क्या इतने H2O जो है या फिर इतने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या वो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली to maintain the osmoregulation of the body this organism has to have this kind of a mechanism that कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, राइट। तो वो बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल वो निकाल रहा है वो किससे वो कर पाएगा, बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म हैज़ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उसको कॉन्ट्रैक्टाइल इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे हार्ट में सिस्टोल डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये जैसे फेज होते हैं, 2 स्ट्रोक होते हैं हार्ट में, वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भी कौन से फेज होंगे, सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो फेज होंगे। और उससे एक्स्ट्रा वाटर जो है साइटोप्लाज्म में वो कहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, बाहर जो है वो एलिमिनेट करेंगे, एंड इट हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेशन। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन एंड आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर प्रोटोजोन। किसमें वो होगा, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में, ओके। तो पहला फूड वैक्यूल था, सेकंड जो दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाउ थर्ड इज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल इज फाउंड इन अ ऑर्गेनिज्म कि जिसमें ये वैक्यूल जो है वो क्या करेंगे, वैक्यूल के अंदर क्या भरा पड़ा होगा, गैस, और उससे वो क्या प्रोवाइड करेंगे, बुओयेंसी प्रोवाइड करेंगे, राइट, ओके। सो गैस वैक्यूल इट इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो वैक्यूल क्योंकि उसके अंदर ना ही फूड है, ना ही एक्सक्रीटेड मटेरियल है, ना ही कोई स्टोरेज फूड मटेरियल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या है, सिर्फ बबल है, राइट, गैस के। These are found in cyanobacteria. Cyanobacteria है, it is also known as blue green alga. मैंने आपको बताया था कि alga जो it is a common term to use for the photosynthetic organism. तो ये cyanobacteria जो है उसको क्या देगा, वो buoyancy प्रोवाइड करेगा and it provide buoyancy, right? तो cyanobacteria जो है वो सरफेस पे रहेगा तो उससे क्या होगा कि लाइट अवेलेबिलिटी जो है वो कभी कम नहीं होगी, राइट। सो ये हो गया गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल, ओके। नाउ the second we can say that the ergastic particles or we can say that the cell inclusions is reserve food. reserve food जो है वो ग्रेन के फॉर्म में होगा, राइट। अगर हम इससे पहले वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल के आसपास क्या था, एक मेम्ब्रेन था, टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ स्टोरेज फूड मटेरियल के ग्रेन्स होंगे या फिर ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में क्या होगा, स्टार्च होगा,
एनिमल सेल में क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च ग्रेन इन केस ऑफ राइस एंड पोटैटो। तो राइस और पोटैटो या फिर व्हीट भी हम ले सकते हैं कि उसमें उसके सेल में क्या होगा, उसमें सेल इंक्लूजन्स होंगे, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होंगे, स्टार्च जो है उसके ग्रेन के फॉर्म में होंगे। ओके, इट इज ऑल्सो फाउंड इन फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल इन केस ऑफ एनिमल सेल, फॉर एग्जाम्पल लिवर एंड मसल सेल्स, उसमें क्या होंगे, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होंगे। ओके, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स इन एल्यूरोप्लास्ट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्रेन। अगर हम मेज ग्रेन का डायग्राम बनाएं तो मेज ग्रेन का डायग्राम जो है ऐसा कुछ ट्रायंगल डायग्राम होगा, राइट, वन साइड इज ब्रॉडर एंड द अदर साइड इज टेपरी एंड ओके, ये पार्ट जो है उसमें क्या होगा, ये पार्ट में होंगे क्या, इस पार्ट जो है उसमें होगा एम्ब्रियो, दिस इज द एम्ब्रियो, राइट, और बाकी का जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। तो ये स्टोरेज फॉर्म में ये जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज एल्यूरोन लेयर, दैट इज नोन एज एल्यूरोन लेयर, और उसमें जो सेल होंगे दैट इज नोन एज एल्यूरोन प्लास्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूरोन प्लास्ट। और ये सारे जो सेल्स हैं दैट सेल्स हैज, we can say that cell has cell inclusions or grain of protein granule जो है उसमें होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टोर होगा, प्रोटीन जो है वो स्टोर होगा। और सेम वे अगर ये सेंटर वाले पार्ट की बात करें तो वहाँ पे कौन से ग्रेन्यूल होंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल होंगे। तो ये याद रखना कि मेज जो है उसका ये एंडोस्पर्म है, ये मेज जो है उसका क्या है, एम्ब्रियो, ये स्टोरेज फॉर्म है फूड मटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में सेंट्रली लोकेटेड स्टार्च होंगे और पेरीफेरी पे क्या होगा, एक प्रोटीन लेयर होगा, और वो प्रोटीन लेयर में जो भी सेल है उस सेल में क्या होंगे, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स जो है वो होंगे, राइट। चलिए, तो प्रोटीन ग्रेन्यूल हुआ। देन ऑयल ड्रॉपलेट्स इन एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है, टू स्टोर द फैट। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर एंड कोकोनट। कोकोनट जो है उसमें दो एंडोस्पर्म है, एक लिक्विड एंडोस्पर्म है, एक सॉलिड एंडोस्पर्म है। अगर हम कोकोनट की बात करें तो कोकोनट अगर ड्राई कोकोनट है, राइट, तो ड्राई कोकोनट का बाहर का सरफेस जो ब्लैक है वो, और उसके अंदर जो वाइटिश पार्ट जो है वो जो हम खा रहे हैं दैट इज अ हार्ड एंडोस्पर्म और सॉलिड एंडोस्पर्म। और उसके अंदर जो लिक्विड सिक्रीशन, लिक्विड जैसा जो कंपोनेंट है दैट इज नोन एज अ लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कोकोनट की, वो सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हार्ड एंडोस्पर्म है वो, ठीक है। वो हार्ड एंडोस्पर्म में जो सेल है वो सेल के अंदर क्या होंगे, ऑयल ड्रॉपलेट। और इसलिए जब आप कोकोनट को कंप्लीटली ड्राई कर दोगे और फिर अगर हम उसको कोई मैकेनिज्म में डालें कि जहाँ से उसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो क्या बनाएंगे, कोकोनट ऑयल बनाएंगे, तो उसमें क्या है कि हर एक सेल में क्या होगा, वहाँ पे हर एक सेल में ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो होंगे, वो भी क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, राइट। और सेम वे कैस्टर में भी यही है। लेकिन ये रिजर्व फूड यहाँ पे और वहाँ पे फूड वैक्यूल में हम बात करें, वो दोनों चीज़ अलग है, क्योंकि फूड वैक्यूल में जो फूड आया है दैट नीड टू बी डाइजेस्ट, और यहाँ पे रिजर्व फूड की बात करें, मतलब जो फूड स्टोर हुआ है उसकी हम बात करें, इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वहाँ पे अगर हम बात करें तो वैक्यूल के आसपास मेम्ब्रेन थे, फूड वैक्यूल के आसपास भी मेम्ब्रेन थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है दैट इज गैसेस। दिस इंक्लूड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अगेन देखिए यहाँ पे हमने लिखे गैसेस, गैसेस लिए सारे इंक्लूजन्स में, लेकिन साथ में हम वैक्यूल में क्या पढ़े, वैक्यूल में हम गैसियस वैक्यूल भी पढ़े। लेकिन जहाँ जहाँ वैक्यूल टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करें तो उसका मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, भले ही लेयर कितना है एक, लेकिन इट इज़ अ मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर। लेकिन ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ गैसेस, तो गैसेस जो है दे आर फाउंड इन सिंपल बबल फॉर्म इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऐसे जो है वो गैसेस भी हो सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, दिस इंक्लूड अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। अगेन ये कोई मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। अगर हम अमोनिया की बात करें, दे आर फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ अ बबल, क्योंकि अमोनिया जो है इट इज अ गैस, गैसियस पार्ट। यूरिया और यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल होंगे, राइट, बट दैट इज ऑल्सो विदाउट एनी मेम्ब्रेन। चलिए, तो ये हो गए वेस्ट। लास्ट जो है दैट इज इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये एम्स में आ सकता है। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आर जनरली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स जो है वो पाए जाते हैं। उससे फर्स्ट जो हम ले रहे हैं दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल। क्रिस्टल किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, और उसको बोलते हैं साइटोलिथ। उसको क्या बोल सकते हैं हम, साइटोलिथ। लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, लेकिन वो
स्टोन जो वो कैसा है, स्पिंडल शेप है, राइट। Okay, so crystal of calcium carbonate are called cytolith and are found in epidermal cell. Epidermal cell is the outermost layer. Epidermal layer कैसा होता है, outermost layer in plant cell. तो जो अगर हम लीव्स की बात करें, अगर हम सॉफ्ट स्टेम की बात करें, तो उसमें जो आउटर एपिडर्मिस लेयर है उसमें जो सेल होंगे, वो जो सेल हैं वो सेल में ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के क्या हो सकते हैं, क्रिस्टल हो सकते हैं। और वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल व्हेनेवर देयर इज एनी काइंड ऑफ ग्रेजिंग एनिमल, कोई भी ग्रेजिंग एनिमल जो होगा वो जब ये लीव्स जो हैं वो ग्रेज करेगा और उसके बाद जब वो उसके ईसोफेगस में जाएगा तो ये क्रिस्टल्स जो है वो वहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे और उससे क्या होगा, वो अनइजीनेस जो वो डेवलप होगी वो एनिमल को, कैटल्स को, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा कि ये प्लांट जो है वो नहीं खाएगा। तो बेसिकली इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। Okay, so crystals of calcium carbonate are called cytolith and are found in epidermal cells of Momordica. It is also found in Ficus elastica, means rubber plant. It is also found in Ficus bengalensis, and these cells contain cytolith and are called lithocytes. ये सेल को हम क्या बोलेंगे, साइटोलिथ वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स है, लेकिन वो जिस सेल में है उस सेल को हम क्या बोलेंगे, लिथोसाइट्स। मतलब ऐसे सेल के जिसमें पत्थर जैसे क्या है, स्पिंडल है, राइट, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सेम वे एक दूसरा एग्जांपल, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ऊपर क्या था, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम किसकी बात करें, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट आर कॉल्ड रैफिड्स। उसको हम क्या बोलेंगे, रैफिड्स, याद रखना। दे आर नूडल लाइक एंड आर फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ आइकोनिया, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वाटर हाइसिन, ठीक है। तो वाटर हाइसिन या फिर आइकोनिया है, ठीक है, उसमें भी ऐसे क्रिस्टल जो है वो होंगे, लेकिन कौन से लेयर में होंगे ये इंपॉर्टेंट है। कौन से लेयर में होंगे, एपिडर्मल लेयर में, एपिडर्मल सेल में। यहाँ पे भी देखिए कि इसमें है एपिडर्मल लेयर में, एपिडर्मल सेल में, क्योंकि वो क्या है, वो आउटर मोस्ट लेयर है और वो ही क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, सिलिका क्रिस्टल्स जो हैं दैट इज ऑल्सो फाउंड, ये हम पढ़ चुके हैं, इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ ग्रासेस एंड व्हीट एंड ओट्स। अब ग्रास, व्हीट एंड ओट्स दे आर मोनोकॉट्स प्लांट, तो उसमें अगर हम बात करें तो वहाँ पे सारे लीव्स जो है वो कैसे होंगे, लीव्स जो है वो सारे कैसे होंगे, ग्रास जैसे होंगे। और अगर आप उसकी सरफेस देखोगे तो सरफेस जो है वो थोड़ा शाइनी दिखेगा और उसकी जो रीज होगी वो थोड़ा आपको कैसे दिखेगी, वो बहुत ही थीनर होगी। और दूसरा वो हम ये भी बोल सकते हैं वो टैपरी भी होगी। तो वहाँ पे ऐसा क्यों है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, सिलिका क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ऑल्दो ग्रास जो है वो उसमें के जो लीव्स हैं वो छोटे होते हैं, तब ग्रास की साइज जब छोटी होती है तब ग्रेजिंग जो है वो कैसे हो जाती है, ईजी, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि सिलिका क्रिस्टल है तो कभी ग्रेजिंग होगा ही नहीं, वो तो होगा। लेकिन जनरली देखिए कि जब कोई ग्रेजिंग एनिमल जब कहीं पे कोई भी ओपन फील्ड में जब ग्रेजिंग कर रहा है तो उसमें वो सिलेक्टिव प्लांट जो है उसी को एज अ फूड जो वो यूज़ करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसमें क्या है कि इसमें सिलिका क्रिस्टल होगा या फिर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होंगे या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होंगे, राइट। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट टू प्लांट। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, राइट। लास्ट जो है दैट इज सिक्रीशन। तो बहुत सारे ऐसे भी सेल इंक्लूजन्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, सिर्फ सिक्रीशन। दीज आर फाउंड इन ग्लैन्युलर सेल। तो प्लांट में बहुत सारे सेल जो है वो कैसे हैं, ग्लैन्युलर सेल विच सिक्रीट सम सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गम की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेटेक्स की, ठीक है, ओके, मे बी इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस, वो म्यूकस हो सकता है, रेजिन्स हो सकते हैं, गम जो है वो भी हो सकता है। सो दीज आर बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट, बट वो हम हमारे जीवन में हम उसको यूटिलाइज करते हैं, राइट। लेकिन ये सारे जो है वो ग्लैन्युलर सेल है, वो ग्लैन्युलर सेल में ऐसे ही मटेरियल, रेजिन हो गया, गम हो गया, लेटेक्स हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब जो है वो सिक्रेट करेंगे, राइट। सो हियर वी आर डन विद द सेल इंक्लूजन्स। आई होप कि ये लेक्चर में सारी चीज़ें जो आपको समझ में आई होगी, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज न्यूक्लियस। आई होप कि ये लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। इफ़ यस, यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज अद्वैत अचीवर्स। आप हमारा एप्लीकेशन जो है वो भी प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून। मेहनत करते रहना, सारे वीडियो देखते रहना, फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक एक बार रिवाइज जो है वो कर लेना, नोट सही से बना लेना, एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करना, तभी जाके मार्क्स आएंगे। लव यू ऑल, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।